ceremony of our documentary on front of package labeling. The FOPL, a game changer for healthy India. NCDs are the major cause of morbidity and mortality around the world. According to WHO, NCDs account for about 71% of global deaths each year. Be it fresh preparations or pre-packaged food, excess consumption of food that is high in fat, salt or sugar are often the major risk factors for obesity and NCDs. Though fresh culinary preparations can help control the levels, aggressively marketed, cheaper and more easily available pre-packaged foods find a growing preference amongst consumers. In 2019, the Food Safety Standards Authority of India had proposed a front of package labels for all packaged foods. However, these regulations were shelved probably due to lack of consensus and huge industry pushback issue and potentially issue regulations from front of pack warning labels. The government have set up a consultative committee to develop the same. In this context, the Department of Community Medicine and School of Public Health PJ Chandigarh, in collaboration with Cyber Chandigarh and Global Health Advocacy Incubator USA, and in close collaboration with Government of Punjab, prepared a documentary on front of package labeling. So now, without further delay, I would like to invite the panelists of the day, Dr. Sonu Goyal, Professor, Department of Community Medicine and School of Public Health, PGI Chandigarh; Mr. Manoj Khosla, Joint Commissioner, Food Safety, Food and Drug Administration, Punjab; Dr. Ravneet Kaur, Director, Food Safety Lab, Punjab; Dr. Geeta Mehra, Head, Department of Food Sciences, MCM DAV College, Chandigarh. I welcome you all the panelists. Now I would like to welcome Dr. Sonu Goyal, Professor, Department of Community Medicine and School of Public Health, PGI Chandigarh, to bestow the welcome address and give a short introduction of the project. He has 18 years of rich experience in public health and health management. He is alumnus of Johns Hopkins School of Public Health, Baltimore, US, and PhD from Maastricht University, Netherlands. He is a Program Director for International Public Health Management Development Program sponsored by Ministry of External Affairs, Government of India. He is Adjunct Clinical Associate Professor, Public Health Masters Program, School of Medicine and Health Research Institute, University of Limerick, Ireland, and Honorary Professor, Faculty of Human and Health Sciences, Swansea University, United Kingdom. I welcome you, sir. Thank you, Nidhi. पहली बात तो सभी भाइयों और बहनों को नमस्कार। हिंदी में करें बात क्या इंग्लिश में करें? हिंदी में मिक्स। हाँ, तो पहली बात तो आप सबका स्वागत है यहाँ पर। दोबारा मिल रहे हैं हम और काफ़ी जाने पहचाने चेहरे दोबारा मिल रहे हैं हम लोग। अभी पीजीआई में मिले थे कुछ दिनों पहले और अब आज आप लोगों से मिल रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आज का मिलने का मुख्य उद्देश्य है, आपको इससे पता है कि एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हो रही है जो पीजीआई ने बनाई है इस डॉक्यूमेंट्री को, और ये प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा फूड सेफ्टी के ऊपर। तो उसके अंतर्गत बनी है ये। आप लोग पहले भी उसके बारे में काफ़ी अच्छी कवरेजेस कर चुके हो, और हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो जनता है जो खाना खाती है, जो पैकेट खरीदती है, तो पैकेट के अंदर उसे पता होना चाहिए वो क्या खा रहे हैं। तो हम जब पैकेट खरीदते हैं बाजार में, हम सब लोग जो खरीदते हैं, जैसे मार्केट गए, हम चिप्स का पैकेट खरीदते हैं, कुरकुरे खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, बिस्किट खरीदते हैं, केक्स खरीदते हैं। तो जब भी हम ये चीजें खरीदते हैं, कभी भी आप लोगों ने किसी ने उसके पैकेज के बारे में देखा है कि पीछे कितने फैट्स होते हैं, कितना तेल है उसके अंदर और कितना चीनी है, कितना नमक है? हम कभी नहीं देखते हैं ये वाला। अभी कुछ दिनों पहले हमने यहाँ पर एक कार्यशाला करी थी आप लोगों के साथ ही, और उसमें एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने बताया था कि जब अगर कोक की बोतल पीते हैं तो उसके अंदर 7 दिनों की चीनी जो है हम एक साथ कंज्यूम कर लेते हैं एक कोक की बोतल से। आपको याद होगा अगर हमने ये वाली बात भी कही थी। तो आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे, और ये डॉक्यूमेंट्री के अंदर हमने एक पहली बात तो ये बताई है कि अच्छा खाना क्या है, हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ज़्यादातर लोगों को पता है ये वाली चीज़ें, पर कुछ हम आसान भाषा में बात करेंगे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। दूसरा, इस डॉक्यूमेंट्री में फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, आजकल चल रहा है और सरकार भी इसके ऊपर काम करने की सोच रही है कि फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग है क्या। फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग का मतलब है, जैसे आपने सिगरेट के पैक के ऊपर देखा होगा कि सिगरेट के पैक के ऊपर उसके ऊपर भयानक से कैंसर के वो बने होते हैं, निशान बने होते हैं, जिसको हम ये इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो सिगरेट का पैकेट या बीड़ी का पैकेट ना खरीद सके। इसी तरीके से हम ये चाहते हैं कि जो आपका पैकेट है, चाहे वो चिप्स का है, चाहे वो तेल है, आपके घर का सामान है, आप अगर वो जो खरीदें तो वो आप उसके ऊपर ऐसे चिन्ह बने हो जिससे आप देख सके कि ये पैकेट आपकी सेहत के लिए अच्छा है, ये तेल अच्छा है, ये तेल अच्छा नहीं है, ये घी अच्छा है, ये घी अच्छा नहीं है, तो ये आप देख कर खरीद सके। तो हमारी डॉक्यूमेंट्री के अंदर हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, ये पंजाब सरकार के साथ हमारा एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है फूड सेफ्टी के ऊपर, और उसमें हमारे साथ मिस्टर मनोज खोसला जी आए हुए हैं एंड डॉक्टर रवनीत कौर आए हैं, जो इसके बारे में चर्चा करेंगे MOU के बारे में कि पंजाब सरकार PGI के साथ मिलकर क्या ऐसा काम कर रहे हैं। और डॉक्टर गीता मेहरा आए हैं जो फूड के बारे में बताएंगे कि फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग की महत्ता बताएंगे कि क्यों हमें एक जानना जरूरी है, हर एक कंज्यूमर को जानना जरूरी है कि पैकेट के ऊपर क्या लिखा है। ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है और कैसे हम जान सकते हैं। और कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ कंट्री ने फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग कर दी है बड़ी आसान भाषा में, कलर कोडेड सिंबल्स ने उन्होंने बताया है कि ये खाना अच्छा है, ये खाना अच्छा नहीं है। तो आगे आप देखेंगे डॉक्यूमेंट्री को। तो इससे पहले आई थिंक हम आपका अगेन मैं शुक्रिया करता हूं कि आप लोग सब लोग आए आज हमारे कार्यक्रम में, और इसको मैं चाहता हूं आपके माध्यम से आम जनता को पता चले और वो सरकार को एक ज्ञापन भेजें या इस तरह की डिमांड करें कि हमें जानने का पूरा हक है कि पैकेट के अंदर है क्या। धन्यवाद। जो आप देख रहे हैं तीसरा नंबर ऑब्जेक्टिव है, उसमें ऑब्जेक्टिव में यही है हमारा कि मीडिया सपोर्ट, आपकी सपोर्ट की जरूरत है हमें, क्योंकि हमने ये देखा है और आपको भी सबको ये आइडिया पूरा आपको पता है कि जब तक मीडिया की सपोर्ट नहीं होगी किसी पब्लिक हेल्थ इशू के बारे में, तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो हमारा यही है कि कुछ हम मीडिया स्टोरी बनाएं, कुछ आप लोग कोई ऐसी स्टोरी बनाकर पेपर में, अपने न्यूज़पेपर में या वीडियो में या जो भी है आप करें इसको पब्लिश, और जिससे कि आम जनता उसके लिए आगे आए। इसी तरीके से हमारा एक पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक कमिटमेंट कि हम लोग जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारी मीटिंग MD NHM से और जो हमारे जैसे कि अब बैठे हैं मिस्टर मनोज खोसला जी हैं, रवनीत कौर जी हैं, तो उनसे मीटिंग करके हम कुछ ऐसी चीज शुरू करना चाहते हैं कि फूड आइटम्स की सैंपलिंग हो। जो फूड आइटम्स हैं बिक रहे हैं उनकी सैंपलिंग गांव के अंदर है, तो उसके थ्रू भी अवेयरनेस हम इसमें क्रिएट करेंगे। ये ट्रांस फैट वाली जो चीजें हैं वो हम एलिमिनेट करेंगे और ट्रांस फैट की मात्रा हम कम करेंगे। तो इसके बाद हमारी काफी मीटिंग्स हुई उनके साथ भी। नेक्स्ट, ये हमारी श्री कुमार राहुल जी हैं, उनके साथ मीटिंग हुई थी। ये 2020 में हुई थी फिजिकल मीटिंग, और हमारे साथ आप जानते होंगे डॉक्टर राजेश विजयवर्गीय जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं हमारे PGI के, और जो हमारे IMA के चेयरमैन हैं डॉक्टर सोडी, तो वो भी थे। तो काफी लोग उसमें आए थे, तो उनके थ्रू हमने कहा था कि कोई कमेटी बने। Safety, Food and Drug Administration Punjab. He is BSc and D Pharma from Guru Nanak Dev University. He joined as a food inspector in 1988 and promoted as Assistant Commissioner Food in November 2016, and are now holding the charge of Joint Commissioner Food Safety FDA Punjab. I welcome you, sir. Thank you, Dr. Lady. सबसे पहले तो मैं हमारे डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ जिन्होंने आज इस इम्पॉर्टेंट इवेंट में मुझे बुलाकर सम्मानित किया, तो मैं सबसे पहले आप सभी मीडिया वालों का भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर इस इवेंट को हाईलाइट करने के लिए अपना जो उजाला किया है। जैसे डॉक्टर सोनू ने बताया कि मीडिया का रोल तो बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए हमारे लिए, हेल्थ के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, लोगों की जो सेहत का
ध्यान रखना है। हमारा जो बहुत ही जो जिम्मेदारी है हमारी फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की, तो मीडिया के थ्रू ही हम इस अचीवमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। सबसे ज्यादा रोल मीडिया का, हम जितनी मर्जी एक्टिविटी कर लें, जितने मर्जी छापे मार लें, जितनी मर्जी रेट्स कर लें एक्टिविटी, लेकिन जब तक मीडिया हाईलाइट नहीं करेगी, लोगों को अवेयर नहीं करेगा, तब हम जीरो हैं। सभी मतलब आपका मैं थैंकफुल हूँ कि आपके थ्रू हम आपके माध्यम से हमारा जो डिपार्टमेंट है अचीव करता है, तो लोगों तक पहुंचाता है हमारी जो जो गतिविधियाँ होती है समय पर। और जैसे डॉक्टर सोनू ने बताया कि जो ट्रांसफैट वाला मुद्दा है, जो हमने जो एमओयू किया है हमारे फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने पीजीआई के साथ, ये लोगों को स्वास्थ्य के ध्यान में रखते हुए ये किया गया। लोगों को जागरूक करना है हमारा फर्ज जो है। एक्टिविटी तो हम करते ही हैं, लेकिन लोगों को जागरूक नहीं है जिसमें कि हम क्या खा रहे हैं। हमने अपने पेट को डस्टबिन समझा हुआ है, पता ही नहीं, आंखें बंद कर लेते हैं, पट्टी बांध लेते हैं, खाते हैं, पता नहीं क्या है सामने, हमें मालूम ही नहीं होता इससे क्या बैड इफेक्ट होगा हमारी हेल्थ पे, इससे क्या कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगी। जो ट्रांसफैट वाले फूड है हमारी बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल को डाउन करते हैं। तो हमें थोड़ी नॉलेज होगी, आपके भाइयों के थ्रू लोगों को पता चलेगा, तो ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है हमारा। जो अब हमने जो एक्टिविटी तो हम फूड सेफ्टी वाले करते ही रहते हैं, जो रूटीन में हमारी जो अचीवमेंट्स हैं हमारा होता है, सारे जिलों में हमने टारगेट्स दिए हुए हैं। पर मंथ हम स्टेट में 800 सैंपल भरते हैं डिफरेंट एडिबल आइटम्स के, और एनालिसिस के लिए लैब में भेजते हैं। और जो सैंपल फेल आते हैं उसके अकॉर्डिंगली जैसे जैसे ऑफेंस होता है वो प्रोसिक्यूट करते हैं। अगर लोअर ऑफेंस है, थोड़ा सबस्टैंडर्ड फूड है, तो हम उसको एडजुडिकेटिंग ऑफिसर एडीसी कोर्ट में हम फाइल कर देते हैं केस, और उसमें फाइन होते हैं। अगर ज्यादा अनसेफ केस है जो बहुत ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो हम जुडिशियल कोर्ट में फाइल कर देते हैं, तो उसको सजा का प्रावधान है इस फूड सेफ्टी एक्ट में। तो ये हमारी गतिविधियां तो फूड सैंपलिंग की, इन्फोर्समेंट की, स्टोरेज, सेल, मैन्युफैक्चरिंग, इसके ऊपर हमारी जो हमारी है ईगल आई रहती है कि कोई भी मार्केट में ऐसा सामान ना बिक्री हो जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर हो। दूसरा, हम ऑनलाइन इंस्पेक्शंस करते हैं। सिर्फ हमारा काम के डंडा चलाना नहीं लोगों के ऊपर, फूड बिजनेस ऑपरेटर को उनको इंस्पेक्शन भी करनी, उनको गाइडेंस देनी, उनको इंप्रूवमेंट नोटिस देने, जो उनकी कमियां हैं उनको बताना। ये भी हमारा एक डिपार्टमेंट का एक मोटो होता है, ताकि उनको पता चले कि इंस्पेक्शन के समय के क्या क्या इसको नॉर्म्स जो फूड सेफ्टी के शेड्यूल 4 है उसका फूड सेफ्टी का हाइजीन कंडीशंस कैसे मेंटेन करनी है, प्रीमाइसेस की हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, पर्सन हाइजीन, और क्या रॉ मटेरियल यूज करने हैं, और कैसे कैसे अदर पैरामीटर्स को आपने फॉलो करना है। फिर उसके बाद हम एक तो ये तो हो गया प्यार वाली बात के इंप्रूवमेंट नोटिस दे देते हैं। कई बार हम ऐसे जाते हैं कि बहुत ही अनहाइजीन कंडीशंस में फूड बेचते हैं लोग, जो देखने में इतना बुरा होता है, मक्खियों से भरमार है, आप देखते हो फास्ट फूड बिक रहे हैं, गंदा सामान है, नाखून काटे नहीं हुए, एप्रन पहने नहीं हुए, फर्श गंदा है, तो हम उसके अनहाइजीनिक चलान्स दे देते हैं डायरेक्टली कोर्ट में। तो उसमें 1 लाख का प्रावधान है फूड सेफ्टी एक्ट के अंदर, वो हम जो फाइल कर देते हैं उसके केस इमीडिएटली, उसकी वेट नहीं करते हम, कोई रिजल्ट नहीं, कोई सैंपलिंग नहीं, इमीडिएटली हम, ताकि लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर हो। लेकिन हमें भी जागरूक होने की जरूरत है, लोगों को पता होना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, तभी थोड़ा सा हम भी, लेकिन हम खुद भी नहीं इतने जागरूक होते, पब्लिक खुद जागरूक नहीं होती। हम खुद खा रहे हैं, उसको पता है कि उसके नाखून गंदे और गोलगप्पे खिला रहा है, हम भी उसको कुछ नहीं बोलते, भैया ग्लव्स पहन लो, थोड़ा फर्क। अकेला डिपार्टमेंट भी कुछ नहीं कर सकता, अकेला मीडिया भी कुछ कर, लेकिन जब तक पब्लिक साथ होगी, लोगों की आवाज साथ होगी, तब हो सके। हम आंखें बंद कर देते हैं, अगर एक्सपायरी है चलो जा दूसरा दे दो, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, हमें सारा नॉलेज होनी चाहिए कि पैकेट के ऊपर क्या लिखा है, इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है। जैसे कोल्ड ड्रिंक में बताया, एक कोल्ड ड्रिंक की 300 ग्राम वाली बॉटल में 10 ग्राम शुगर होती है, 30 ग्राम, 10%, 30 ग्राम शुगर। देखिए, एक आपने कोल्ड ड्रिंक पी लिया तो 30 ग्राम शुगर हमारे अंदर चलेगी एक दिन, एक कोल्ड ड्रिंक से। हमें बच्चों को इसको समझाना है, जंक फूड नहीं खाने, स्कूलों में ये अवेयरनेस फैलानी है। फिर हम अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं। फिर हमारे अब पंजाब सरकार ने अंडर मिशन तंदुरुस्त पंजाब फूड सेफ्टी बैंस, अब हमारे डिपार्टमेंट में सभी डिस्ट्रिक्ट में रोटेशन वाइज 5 फूड सेफ्टी बैंस है, हम मौके पे ही टेस्ट कर देते हैं। जो कोई एफपीओ जहाँ अपना कोई भी प्राइवेट पब्लिक का पर्सन जो अपना सामान खरीद के लाया वो टेस्ट करवाना चाहता है, हमारे अंदर सारी पूरी उसमें लैब है, पूरी इक्विप्ड है लैब, वो मोबाइल टेस्टिंग वैन हमारी खड़ी होती है हर जिले में रोटेशन वाइज। तो अभी 5 है, 2 और आ रही है हमारे पास, उसके बाद फिर FSSAI हमें और भी देने जा रही है ताकि सभी चीज़ों के लिए पूरी हो जाए। तो हम मौके पे ही टेस्ट रिपोर्ट दे देते हैं कि इसमें क्या सामान में मिलावट है क्या नहीं। एक इम्पॉर्टेंट इशू जो इसी के साथ रिलेटेड है हमारा, रुको रीयूज कुकिंग ऑयल। इसमें क्या है कि हम देखते हैं जब पकौड़ों वाले जाते हैं जहाँ समोसे तल रहे थे, कितना गंदा तेल में फ्राई करते हैं।
इस तेल को 2 बार से ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। उसको अगर गंदा तेल हो गया, ब्लैक कलर का हो गया, उसको फेंक के दोबारा नया। इसको बोलते हैं टोटल पोलुलर कंपोनेंट, जो टीपीसी इसका बढ़ जाता है। इससे भी हार्ट की प्रॉब्लम होती है। देखा आपने हार्ट पेशेंट्स कितने हो रहे हैं, इन्हीं वजह से हो रहे हैं कि हमारे को जागरूकता नहीं है, हम खुद भी क्या खा रहे हैं। पैकेट में तो चलो हो गया, बात हो गई, लेकिन रूल्स में भी हमने देखना है कि क्या हमने इसका क्या खा रहे हैं। फ्राइड में अच्छा तेल यूज करो। घरों में भी हम घर में भी हमें कई बार नहीं जागरूकता होती, उसमें भी हम 4-5 बार 6-6 बार तेल को गर्म करके यूज करते हैं। इसके लिए हमने गवर्नमेंट ने जो अंडर मिशन तंदुरुस्त पंजाब हमें टीपीसी मीटर लेके देने जा रही है, ताकि हम सभी जिलों के ऑफिसर्स को दे दें। मौके पे ही हम तेल की टीपीसी चेक करेंगे, तो अगर टीपीसी बढ़ी हुई तो उसके ऊपर हम उसका चालान करेंगे, उसको फिरवाएंगे उसको। फिर हमारा डिपार्टमेंट जो ज्यादा मेजर होता है, जहाँ कोई हमें लगता है मिलावट का है, सैंपलिंग के साथ साथ हम वहाँ सीजर्स कर देते हैं। मान लो हमें नकली पनीर मिल गया, सबस्टैंडर्ड पनीर मिल गया, सबस्टैंडर्ड गोया मिल गया, कुछ ऐसी आइटम मिल गई, हम रेड हैंडेड पकड़ लिया, घी में मिलावट कर रहा है, वो रिफाइंड डाल रहा है, वो हम मौके पे उसको सारा सीजर कर देते हैं और सैंपलिंग के बाद उसको सारा कोर्ट से ऑर्डर लेके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और दूसरी होती है पेरिशेबल आइटम, जो अनहाइजीनिक कंडीशन में है, स्टेल फूड है, एक्सपायरी है, वो मौके पे ही हम नष्ट करवा देते हैं। तो एक तो ये हो गया हमारा। अब जो दूसरा हमारा जो एमओ जो हुआ है, इसमें हमने 3 फेजेस में ये कंप्लीट करना है। हमने पहला फेज हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने सभी डिस्ट्रिक्ट्स के डेजिग्नेटेड ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर फूड एंड फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की मीटिंग कर ली है हमने इन डॉक्टर गोयल साहब से। तो सभी ने हमने उनके साथ उनको ट्रेनिंग भी दे दी है कि जो ट्रांसपैट के लिए कैसे कैसे इसको काम को स्टार्ट करना है। तो हमने वो फेज फर्स्ट कंप्लीट कर लिया। सेकंड फेज हम दूसरा जो शुरू करना है, उसका रोड मैप हमने तैयार कर लिया है। उसमें हमने क्या करना है, हमने सर्वेलेंस सैंपलिंग करनी है। सर्वेलेंस सैंपलिंग सभी जिलों में होगी, जैसे हमने सभी ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दे दी है। उसमें क्या करेंगे, हम उसमें पिकअप करेंगे सैंपल्स जिसमें ट्रांसफैट का हमें है, जैसे बेकरी आइटम है, फास्ट फूड है, बर्गर है, जंक फूड, पकौड़ा, समोसा, ऐसे जिस आइटम में हमें वो रोड मैप हमने गाइडलाइन दे देंगे कि कैसे कैसे वो सैंपलिंग होगी सर्वेलेंस पूरे पंजाब में। वो सैंपलिंग हमारी लैब भी फुली इक्विप्ड होगी अब इस टेस्टिंग के लिए। तभी थोड़ा देर होगी प्रोजेक्ट में, क्योंकि अभी लैब में हमारी मशीनरी इंस्टॉल हो रही है। तो अभी हम सातवीं टेस्टिंग रिपोर्ट दे देंगे। तो उसमें हम उसके साथ हम फिर उसके बाद डाटा इकट्ठा करेंगे कि ट्रांसफैट किस किस प्रोडक्ट में ज्यादा है, वो सारा हम वो इनके साथ सारा बैठ के फिर थर्ड फेज में हम उनकी मीटिंग्स शुरू करेंगे स्टेक होल्डर्स के साथ, वनस्पति मैन्युफैक्चरर्स के साथ, जिसके साथ करनी है, ताकि उसके बाद हम इस प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट करेंगे और लोगों को अवेयर करेंगे कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये बढ़िया है, जिसको खाना है। ये प्रोजेक्ट हम नेक्स्ट मंथ में हम स्टार्ट कर देंगे सर्वेलेंस। उसमें जैसे मीट शॉप्स हैं, उसके लिए अलग कलर का वो उन्होंने फूड सेफ्टी प्रोग्राम, स्वीट शॉप्स के अलग है, किराना शॉप्स के अलग है, मैन्युफैक्चरर हो गया, स्ट्रीट फूड वेंडर हो गया, जो जैसी जैसी आइटम है उसके 12 रूल्स, गोल्डन रूल्स आपने देखे होंगे एक जगह लगे हुए हैं। कोई आपके पास ऐसा कोई डाटा है जिसपे आपने कार्रवाई की है पंजाब में जो आपके फूड सेफ्टी एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं? दूसरा ये कोई आपकी स्पेशल टीम है जिन्होंने पकड़ा हो सामान, और फेस्टिवल सीजन फेस्टिवल सीजन में तो चलो सेल बढ़ जाती है और एक्टिविटी बढ़ जाती है, वो उसमें तो ज्यादा हो जाते हैं। वैसे तो हमारा सारा साल ही चलता रहता है। हमने टारगेट दिए हुए डिस्ट्रिक्ट्स को 800 सैंपल हम भरते हैं हर महीने खाने पीने वाली चीजों में। और हमें अभी अपने अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में हमें कंप्लेंट्स मिली थी, जो आपने स्टील वाली बात कर रहा हूँ मैं, जो हमारा जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है वो BIS होना चाहिए, बिना BIS के भरा नहीं जाएगा। हमने 20 फैक्ट्रियां सील की हैं अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में पिछले 4 महीनों में, जो बिना लाइसेंस के, BIS लाइसेंस, जिसने उठा घर में मशीन लगाई और कप्स भरने शुरू कर दिए, बॉटल भरने शुरू कर। हमें कंप्लेंट्स मिली तो हमने स्पेशल कैंपेन चला के 20 फैक्ट्रियां से सील करवाई हैं, जो स्पेशल। जी, ये PGI चंडीगढ़ की बॉडी है, आप पंजाब के कमिश्नर है, पंजाब में ही सिर्फ ये रन करते हैं एक्टिविटी, और चंडीगढ़ में भी कोई नहीं? हमारा पंजाब का जो डिस्ट्रिक्शन है, चंडीगढ़ का अलग हमारा है। पंजाब के अंतर्गत अभी दशहरे में कोई ऐसी मिठाई शॉप नहीं थी जहाँ पे 1 बार या 2 बार ही उबाला गया हो। समोसा हुआ या मिठाई की शॉप पे जितने भी ऑयल यूज हो रहे थे,